Hello students, today we will start a new topic, that is urinary elimination. So urinary elimination means the urine which will be eliminated by the urethra, or in female urethra, or in male penis. So why we have to discuss this topic, urinary elimination? Because after urinary elimination we will discuss about the procedures such as catheterization, bladder irrigation. So before that we have to understand what is urinary elimination, what are the characteristics, what are the composition of urine, and what factors which will be influencing the urinary elimination. So first we will first we will discuss with organs of the urinary system. So you all know about the main organs which will be present in the urinary system. The components of urinary system include the kidney which will be responsible to purifying the blood. Then the ureter, it is the two tubings which will be present in our body, and it will be a passage. So with the help of this passage, the waste products which will be excreted by the kidney, it will be enter into the bladder. So it is a passage. Then urinary bladder, it is a muscular organ in which the urine which will be collected in the urinary bladder. Then next is the urethra, it is one opening which will be present in the which will be present in the human being. So with the help of this urethra, the urine which will be eliminated by our body. So these are, I mean, say this is short explanation about the organs of urinary system. So this is not my topic, but we have to know that what all organs which will be present in this system. The next is the review of physiology of urinary or urine elimination. So when the urine is collected in the bladder, desire to void is experienced due to the stimulation of stretch receptors. So uh, when the kidney which will be excrete the waste product, and with the help of uh, this ureter, the waste product which will be enter into the bladder. So the urine which will be collected into the bladder, and it when our bladder which will be full, in that time we have desire to void is experienced, means हमको ऐसा लगता है कि हमको यूरिन को पास करना है. सो क्यों ऐसा लगता है? ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ स्ट्रेच, बिकॉज ये क्या करता है, इट विल बी स्ट्रेचिंग द receptors. So because of this we will feel that we have to pass out the urine, we have to eliminate the urine from our body. Then this sensation occurs when the bladder is filled with 250 to 450 250 to 450 ml of urine in adults and 50 to 200 ml in children. So in this sensation occurs when the bladder is filled, means ये sensation हमारे body में कब होता है? जब bladder कितना feel होता है? It will be up to 250 to 450 ml of urine in adults, and in children 50 to 200 ml अगर बच्चों में होगा, और बड़ों में 250 to 450 ml अगर हमारे ब्लैडर में इतना यूरिन कलेक्ट हो जाता है. सो इन दैट टाइम दिस सेंसेशन विच विल बी अकर, मीन्स every time we are not having this sensation, means we will not experience that we want to pass out the urine, or we want to go to toilet. So in this way, means that ब्लैडर विच विल बी कलेक्ट द यूरिन, वो यूरिन को कलेक्ट करके रखता है, लेकिन इतनी कैपेसिटी होती है कि वो यूरिन को 250 टू 450 ml तक कलेक्ट करके रख सकता है. लेकिन जब इतना इससे कम होगा तो वो वहां पे रहेगा, लेकिन जब 250 से 450 ml ब्लैडर में भर गया है, तब फिर वो सेंसेशन जो है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है. और बच्चों में 50 टू 200 ml जो है वो ब्लैडर अगर फुल होगा तब फिर एक सेंसेशन आता है, फिर तब हमको ये फील होता है कि हमको यूरिन पास करना है. देन द स्ट्रेच रिसेप्टर ट्रांसमिट द मैसेज टू द वॉइडिंग रिफ्लेक्स सेंटर इन द स्पाइनल कॉर्ड, सेकेंड टू फोर्थ सैक्रल वर्टिब्रा. अब कौन से ऐसे वर्टिब्रा है विच विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर, मीन्स
these signal which will be transmitted by the brain. So the stretch receptor which will be transmit the message to voiding reflexes center in the spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड से ये क्या करते हैं, एक सिग्नल भेजते हैं. किसको सिग्नल भेजते हैं? जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है ये ट्रांसमिट होंगे एंड इट विल बी सेंडिंग द मैसेज टू वॉइडिंग रिफ्लेक्स सेंटर. मतलब वॉइडिंग रिफ्लेक्स सेंटर में ये मैसेज भेजते हैं. किसके थ्रू भेजते हैं? इट विल बी सेंडिंग इन द स्पाइनल कॉर्ड. एंड स्पाइनल कॉर्ड में कौन सा एरिया? स्पाइनल कॉर्ड बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है. सो इट विल बी फ्रॉम सेकेंड टू फोर्थ सेक्रल वर्टिब्रा वाले एरिया, क्योंकि इन्हीं एरिया में हमारा जो किडनी और ब्लैडर ये सब जो है वो वहां पे प्रेजेंट रहता है. Then if the time is appropriate, the brain seeds masses through a spinal cord causing stimulation so that the urine can be released from the bladder. So if the time is appropriate, अगर time appropriately time में जो brain है वो मैसेज को सेंड करता है, किसके थ्रू सेंड करता है? द मैसेज विच विल बी सेंडिंग बाय द स्पाइनल कॉर्ड विच विल बी कॉजिंग द स्टिमुलेशन. मतलब ये क्या करता है? कॉज करता है. व्हेन द ब्रेन विच विल बी सेंडिंग द सिग्नल थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड एंड व्हेन दिस सिग्नल विच विल बी गेटिंग बाय द स्ट्रेच रिसेप्टर्स, so in that time it will be stimulated so that so in this way that the urine can be released. So तब हमको ऐसा लगता है कि हाँ हमको अब यूरिन पास करना है. So in that way the urine which will be released from the bladder, फिर वो bladder के through वो पास हो जाता है. If the time and place are appropriate, the external sphincter relaxes and the urination process takes place. और उसके बाद क्या है? जैसे sometime we have to control the urine because of situation, because of time, because of place. So if the time and place are appropriate, अगर time और place appropriate है, so the external sphincter relax and the urination process takes place. मतलब अगर हम यूरिन जा सकते हैं तो उस समय पे अगर टाइम और प्लेस अप्रोप्रिएट है तो एक्सटर्नल स्पिंचर क्या होंगे? रिलैक्स हो जाते हैं और यूरिनरी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है. यूरिन हमारे बॉडी से ब्लैडर से बाहर निकल जाता है और हम रिलैक्स फील करते हैं. सो दिस इज द रिव्यू ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन एलिमिनेशन. इट इज नॉट द फिजियोलॉजी ऑफ किडनी और ब्लैडर और यूरिनरी सिस्टम, बट इट इज द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन elimination. Then what are the composition which will be present in the urine? The urine which will be consist of 96% of water and 4% of solid. Solid means means not सॉलिड कंपोजिशन मीन्स जब हमारे किडनी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो आते हैं तो उसमें जो सॉलिड थिंग्स होते हैं विच विल बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड. सो यूरिन कंसिस्ट ऑफ 96% ऑफ वाटर. उसमें 96% ऑफ वाटर रहता है और बाकी जो 4% है वो सॉलिड्स होते हैं. द सॉलिड्स इंक्लूड इसमें क्या होते हैं? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं. सो ऑर्गेनिक कौन से हैं? यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, यूरेट्स, chlorides, phosphates, sulfates and oxalates. This comes under the organic. And inorganic it will be sodium, potassium, calcium, chlorides, phosphate, sulfate or oxalate. Whenever we will performing the urinary examination, in urinary examination we will see the level of urea, we will see the level of uric acid, we will see the level of creatinine, urates, chloride, phosphate, sulfate, oxalate. So how we will see? Because in urine these solid products which will be present up to 4%. If it will be increased or decreased, it means the person is having any any disease condition or any other difficulty which will be present in the patient's body. So these all are about composition of urine. So basically in urine, the urine which will be consists 96% of water and 4% of solid. So in solid it will be divided in two types, that will be organic or inorganic substance. Then next is the characteristics of normal range. So characteristic क्या characteristics होते हैं? मतलब कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसका वॉल्यूम कितना है, कलर कितना, उसका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, उसका ऑर्डर कैसा है, रिएक्शन कैसा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है. सो वॉल्यूम एन अमाउंट ऑफ 1000 to 200 ml ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड इन 24 आवर. मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल 24 आवर्स में 1000 से लेकर के 2000 ml तक यूरिन को क्या करता है? एक्सक्रीट करता है. इफ the level of the urine which will be decrease, it will be decrease or increase or absence. So there will be some terminology we will discuss in next slide. Then the volume that will be
एन अमाउंट, एक अमाउंट होता है ह्यूमन बॉडी में 1000 to 2000 ml of urine excreted in 24 hours. Then what is the color of the urine? So the normal urine is pale yellow और एम्बर इन कलर, मतलब जो नॉर्मल यूरिन होता है वो पेल येलो कलर का होता है और एम्बर इन कलर होता है. व्हेन द क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज इंक्रीज द कलर बिकम पेल येलो. लेकिन जब यूरिन की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, सो इन दैट कंडीशन द color of the urine become pale yellow, and when the quantity of urine decrease the color become deep yellow. मतलब जब ज्यादा अमाउंट में यूरिन पास करेंगे तो उसका जो कलर है वो पेल येलो होगा, और जब कम अमाउंट में होगा, कम अमाउंट में कब होगा, when we will not take the proper amount of water, in that time the color which will be deep yellow. So this is the color, and how the color which will be changed, it will be also discussed in this color. Then appearance, the normal urine is clear with no deposit, means अगर normal urine है तो वो clear दिखाई देगा और उसमें कोई भी deposition नहीं रहेगा. But if the patient is having any means a deposition or any infection or any other thing which will be present in the urine, in that time the color of the urine which will be different. Then odor, the normal urine has an aromatic odor. If the urine which will be normal in odor, so in that time the odor of urine that will be aromatic. But if the patient is having any disorder or any other thing, so in that time the odor of urine which will be changed. Then reaction of normal urine is slightly acidic. So the normal urine reaction which will be acidic, and specific gravity, it varies from 1.016 to 1.025 with the normal fluid इंटेक. मतलब ये नॉर्मल फ्लूइड इंटेक पे डिपेंड करता है और ये वैरी करता है 1.016 से लेकर के 1.025 तक. Then alteration in urinary elimination. Alteration in urinary elimination means अगर यूरिनरी एलिमिनेशन में कोई अल्ट्रेशन आ रहे हैं तो कोई चेंजेस आ रहे हैं, सो देयर विल बी सम टर्मिनोलॉजी. कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, सो वो हम लोग स्लाइड में डिस्कस करेंगे. सो पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया मीन्स क्या है? इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ एब्नॉर्मल लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन बाय द किडनी. पॉलीयूरिया कैन फॉलो एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक, अ कंडीशन नोन एज पॉलीडिप्सिया. मतलब कि पॉलीयूरिया में क्या होता है? इट इज एन एब्नॉर्मल लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन. जब हमारे बॉडी में लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन का क्या होने लगता है? एक्सक्रीट होने, लार्ज यूरिन जो है किडनी प्रोड्यूस करने लगता है लार्ज अमाउंट में यूरिन को. सो इट इज कॉल्ड एज अ पॉलीयूरिया. तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पॉलीयूरिया. तो ये क्यों हो सकता है? इसके कारण क्या है? पॉलीयूरिया कैन फॉलो एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक. या तो फ्लूइड इनटेक ज्यादा होगा, या फिर पेशेंट को क्या होगा, या पेशेंट को कोई ऐसे किडनी डिसऑर्डर होंगे जिसके कारण से पेशेंट को मतलब द पेशेंट इज हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ दैट किडनी डिसऑर्डर है ना, किडनी का कोई प्रॉब्लम है, किडनी में कुछ एबनॉर्मलिटी आ गई है, उसके सेल्स कुछ डैमेज हो गए, उसके कारण से हो सकता है. सो इन दिस पॉलीयूरिया कैन फॉलो एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक. मतलब हम लोग बहुत ज्यादा पानी ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं. और पानी क्यों पी रहे हैं? अ कंडीशन नोन एज, जब हमको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है तो हम लोग ज्यादा पानी पी रहे हैं, तो ज्यादा अमाउंट में यूरिन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये कभी कभी नॉर्मल भी होता है, मतलब कभी कभी जैसे गर्मी में हम बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं तो हम ज्यादा यूरिन पास करेंगे, लेकिन समटाइम it will be abnormal functioning of the kidney also. The next is the oliguria. Oliguria is defined as low urine output, usually less than 500 ml a day or 30 ml an hour. मतलब कि oliguria means क्या है? It is a decreased amount of urine. यूरिन का जो अमाउंट है वो जब डिक्रीज हो जाता है, तो डिक्रीज कब, कितना डिक्रीज हो रहा है? 24 आवर्स में नॉर्मली हमारा जो यूरिन है वो कितना मतलब एलिमिनेट होता है या कितना प्रोड्यूस होता है? 1000 to 2000 ml. लेकिन जब वो कितना हो गया है? 500 ml से 500 ml इन 24 आवर और 30 ml एन आवर. एक घंटे में 30 ml या फिर 500 ml a day 24 आवर में अगर हो रहा है तो इसको हम लोग ओलिगुरिया बोलते हैं. देन नेक्स्ट इज द डायूरेसिस. इट इज द another term for production and excretion of large amount of
यूरिन, मतलब ये एक अनदर टर्म है, जैसे पॉलीयूरिया है, पॉलीयूरिया में भी ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है और एक्सक्रीशन हो रहा है, सो इट इज अनदर टर्म फॉर प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन. अब the next is the anuria. Then the A comes, so it means absence, so it refers to a lack of urine production with no effective urinary output, means the urine which will be not produced or lack of urine production. So when the urine which will be not produced, in that time the patient or the person which will be not showing any urinary output. Then next is the nocturia. Nocturia means voiding 2 or more times at night, मतलब नाइट में जो लोग दो बार या दो से ज्यादा बार रात में यूरिन के लिए जाते हैं, that is called as nocturia in night time. Then dysuria. Dysuria means it means voiding that is either painful or difficult, means difficult urination और पेनफुल यूरिनेशन. जब पेशेंट ये बोल रहा है कि पेशेंट को यूरिन पास करने के समय में डिफिकल्टी हो रही है या पेन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज dysuria. The next is the enuresis. Enuresis means defined as involuntary urination in children, means अपने आप जैसे बच्चों में यूरिन पास हो जाता है, involuntary urination in children. So generally in some age, कुछ एज तक बच्चे involuntary urination होता है, बट कुछ समय के बाद जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है तब जो यूरिनेशन है वो वॉलेंट्री हो जाता है, मतलब हम जब पास करना है तब हम यूरिन को पास करेंगे. बट अगर ऐसा हो रहा है कि बच्चा 6 साल का 7 साल का हो गया है, बट इन दैट टाइम ऑल्सो इनवॉलेंट्री अपने आप अगर यूरिन पास हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज एन्यूरेसिस. देन नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस. नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस मीन्स इनवॉलेंट्री यूरिनेशन ड्यूरिंग नाइट, मतलब ये कोई बच्चों के लिए नहीं है, मतलब अगर यूरिनेशन जो है वो ड्यूरिंग नाइट टाइम में अगर यूरिन पास हो रहा है अपने आप, दैट इज कॉल्ड एज नॉक्टर्नल यूरिनेशन. Then next is urinary frequency. Urinary frequency is voiding at frequent interval that is more than 4 to 6 times per day. मतलब जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली इंटरवल में अगर पेशेंट को पर्सन को क्या हो रहा है, यूरिन पास कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी. सो अर्जेंसी. अर्जेंसी इज द सडन स्ट्रॉन्ग डिजायर टू वॉइड, मीन्स अचानक से अगर किसी पर्सन को यूरिन आ रहा है, एकदम सडन और स्ट्रॉन्ग डिजायर है, अचानक से उसको यूरिन आ रही है और उसको बहुत मतलब उसको यूरिन पास करना है, दैट इज कॉल्ड एज अर्जेंसी. Then what are the factors which will be influencing the urinary elimination? So there will be some factors, there will be some 6 factors which will be influencing the मतलब यूरिनरी एलिमिनेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं. सो फर्स्ट इज द एज. एज इज नॉट ओनली इन्फ्लुएंस द यूरिनरी एलिमिनेशन and it also influence the elimination of control itself. Children are not able to control the urination where the elders can do, मतलब कि children जो है वो यूरिनरी एलिमिनेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो यूरिनरी एलिमिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन द एलिमिनेशन ऑफ यूरिन डिक्रीज्ड स्पिंचर मसल कंट्रोल, लेकिन अगर जब हमारा स्पिंचर मसल कंट्रोल जो है वो अगर क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, तो उसके कारण से क्या हो सकता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है. और ये कब होता है, व्हेन द एज इट विल बी वेरी means in elderly person. Elderly means more than 70 years, 80 years, 90 years. इस समय पे हमारे जो बॉडी में जो मसल्स होते हैं, जो मसल्स स्पिंचर्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं, उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण से जो ब्लैडर है वो उसको होल्ड करके नहीं रख पाता है, तो पेशेंट पर्सन जो है अपने आप ही यूरिन को पास कर देता है. देन डाइट. सो इन डाइट फूड इज द मेन फैक्टर टू एलिमिनेट ऑफ यूरिन. सो द लो फाइबर फूड, अगर हम लोग लो फाइबर फूड लेते हैं और इट विल बी कॉज अ स्लो मूवमेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव बी रीच्ड रेक्टम, सो द बिफोर इंक्रीजिंग वाटर एब्सॉर्प्शन, मतलब जिसके कारण से क्या होता है, अगर हम लोग लो फाइबर डाइट लेंगे उसके कारण से क्या होगा, स्लो मूवमेंट होता है, मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लोली मूव करता है, जिसके कारण से
वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है. सो वाटर एब्जॉर्प्शन अगर इंक्रीज हुआ, सो इन दैट कंडीशन द इट विल बी रिजल्ट्स फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन. सो कॉन्स्टिपेशन होगा तो क्या होगा, मतलब सो ईटिंग रेगुलरली इज वेरी इन्फ्लुएंशियल ऑन द रेगुलरिटी ऑफ द डेफिकेशन. मतलब डेफिकेशन के लिए या यूरिन पास करने के लिए हमको क्या करना है, मतलब अच्छे फाइबर डाइट्स जो है वो लेना है. अदरवाइज जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो क्या होने लगता है, ज्यादा अमाउंट में होने लगता है. देन नेक्स्ट इज द फ्लूइड ऑल्सो अफेक्ट द यूरिनरी एलिमिनेशन. ये तो हम लोग सबको पता है कि 1.5 से 2 लीटर पानी हमको 1.5 to 2 लीटर वाटर वी हैव टू टेक डेली इन अवर लाइफ. सो अगर हम लोग ये फ्लूइड नहीं लेते हैं तो क्या होता है, इट विल बी अफेक्टिंग द function of the urinary elimination. So proper amount of fluid will not taken, then it affect the urinary elimination. ये किसको affect कर रहा है, urinary elimination को affect करता है. So when the fluid output is excess, then the body which will be absorb fluid from the कोलोन. मतलब अगर हम लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में लेंगे तो भी वो कोलोन के थ्रू क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब हो जाता है. दिस कॉज द स्टूल बिकम वेरी हार्ड. और उसके कारण से क्या होगा, द स्टूल जो है वो हार्ड हो जाता है. द पर्सन इज हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन. सो इन दिस एंड डिफिकल्ट टू पास थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. lack of fluid intake cause the blood volume filter in the kidney to be reduced. अगर कम अमाउंट में फ्लूइड ले रहे हैं, मतलब एक्सेस लेंगे तो भी परेशानी है, और कम लेंगे, डिक्रीज अमाउंट में लेंगे तो भी परेशानी है. देन नेक्स्ट इज द फिजिकल एक्सर्शन. So physical exertion, the physical exertion help a person to maintain. Physical exertion मतलब when we will work means बहुत ज्यादा हमने काम कर लिया या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया. So with the sweating, sweat से हमारे जो बॉडी का जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण से हमारे बॉडी में जो वाटर का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है. सो इन फिजिकल एक्सर्शन द पर्सन टू मेंटेन मसल टोन. इसमें हमको एक्सर्शन हेल्प टू पर्सन. जब हम फिजिकल एक्सर्शन करते हैं वो जरूरी है. क्यों जरूरी है, क्योंकि ये पर्सन को हेल्प करता है टू मेंटेन अ मसल टोन, मसल टोन को मेंटेन रखने में. सो गुड मसल टोन ऑफ द मसल्स ऑफ द एब्डोमिनल, पेल्विक मसल एंड द डायफ्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेफिकेशन. मतलब अगर हमारा फिजिकल एक्सर्शन नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल इफ द पेशेंट इज अनकॉन्शियस, अगर अनकॉन्शियस है या बेड रिडन है तो पेशेंट कंप्लेन करता है दैट द पेशेंट इज हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ दैट कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या प्रॉपर डेफिकेशन नहीं हो पा रहा है या उसको जीआई डिस्टर्बेंस हो गया. ये क्यों होता है, क्योंकि मसल्स में मूवमेंट नहीं होता है. सो उसके लिए ये जरूरी है. लेकिन जब बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो भी ये क्या करता है, it will be also affect our body. Then psychological stress. So in psychological stress, when the person more stress, जब हम बहुत ज्यादा stress होते हैं या फिर psychological disturbance होता है, so in that time the person which will be having eliminate of urine because body is in fear. मतलब जो body है हमारी वो fear में रहती है या अच्छी नहीं है और not good. So in that time the person is having the problem of excessive urinary elimination. Then next is the temperature. So body temperature also eliminates the urine. हमारा जो body temperature है वो भी urine को eliminate करता है. A person with fever reduce the water level in body. जब हमारे body में फीवर होता है या टेम्परेचर बढ़ जाता है तो भी ये क्या करता है, हमारा बॉडी का जो वाटर है वो लॉस्ट होता है ड्यू टू इवेपोरेशन. क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, इवेपोरेशन होता है. इट इज बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर. और इवेपोरेशन क्यों होता है, इट विल बी बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर. सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच विल बी इन्फ्लुएंसिंग द यूरिनरी एलिमिनेशन. सो in this slide we have discussed about the review of urinary elimination. What are the characteristics of urinary urine, then what are the composition of urine, then what are the factors which will be influencing the urinary elimination. So these all are about your topics. So thank you.